is Rani and welcome back to Learn with Simplicity. So guys, आज के सेशन हमारा क्लास 12th CBSE स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन और आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर। तो चिल्ड्रन, इंग्लिश में आपके 3 सेक्शंस हैं जैसा कि आप जानते हैं, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स and literary reader. So this time this reading section will consist of 20 marks, writing skills which consist 16 marks and your literary reader which will consist of 24 marks. So ये सब मिला के आपका हुआ 80 और 20 marks हैं आपके listening and speaking assessment के। तो चिल्ड्रन, रीडिंग सेक्शन में क्या आएगा, क्या राइटिंग स्किल्स में आएगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी डिरेक्शन में हैं, उसके बारे में बात करने से पहले आइए मैं आपको बता दूं कि लिटरेरी रीडर में आपकी जो बुक है फ्लैमिंगो एंड विस्टास, उन बुक्स में कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो इस बार आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो इन फ्लैमिंगो द लास्ट लेसन by Alphonse Daudet, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Annis Jung, Deep Water by William O. Douglas, The Red Trap by Selma Lagerlöf, Indigo by Louise Fisher. These 5 chapters will come in Flamingo from prose and from poetry. All the 6 poems are coming. My Mother at 66 by Kamla Das, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spander, Keeping Quiet by Pablo Neruda, A Thing of Beauty by John Keats, A Roadside Stand by Robert Frost, and Aunt Jennifer's Daggers by Adrienne Rich. आपकी सप्लीमेंट्री बुक में यानी कि विस्टास में जो चैप्टर्स आ रहे हैं आइए एक बार उनको देख लेते हैं। The Third Level by Jack Finney, The Enemy by Pearl S. Buck, Should Wizard Hit Mommy by John Updike, On the Face of It by Suzanne Hill, Evans, Tries and O-Level by Colin Dexter. So guys, ये तो था आपका लिटरेरी रीडर का सिलेबस। आइए एक बार एग्जामिनेशन का, इंग्लिश एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि किस सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के वो होंगे। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन, इन विच 2 unseen passages each carrying 11 multiple choice questions in which 10 out of 11 questions to be done. And each passage will consist of 10 marks. It means 10 mark के आपके 2 unseen passages आएंगे जिसमें आपको 11 में से 10 questions करने होंगे। इन टोटल आपके पास 22 questions होंगे दोनों passages को मिला के, जिसमें से आपको 20 questions solve करने होंगे। सेक्शन एक और बात कि इस बार नोट मेकिंग नहीं आ रहा है, जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आता रहा है। इस बार नोट मेकिंग जो है वो डिलीशन में है। नाउ सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स, विच विल कंसिस्ट ऑफ 16 मार्क्स। नाउ सो इन विच शॉर्ट राइटिंग टास्क, फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई अप टू 50 words. And this question will consist of 3 marks in which 1 out of the 2 given questions to be answered. इसकी मार्किंग देख लीजिए आप एक बार। Format consists of 1 mark, content consists 1 and expression consists of 1 mark. So this formal and informal invitation and reply will consist of 3 marks only. Next question will come again, that is short writing task, notice or advertisement up to 50 words, 1 out of the 2 given questions to be answered, और ये भी आपका 3 marks का रहेगा।
फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट 1 मार्क एंड एक्सप्रेशन कंटेन्स 1 मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, letters based on verbal and visual input to be answered in approximately 120 to 150 words. Letter types include application for a job and letters to the editor. यानी कि आपको केवल 2 तरह के लेटर इस बार करने हैं, जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर्स टू द एडिटर. लेटर्स टू द एडिटर में by giving suggestions or opinion on issues of public interest. 1 out of the 2 given questions to be answered. ये आपके 5 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, जिसमें कि फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क, कंटेंट 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, descriptive and analytical in nature based on verbal inputs to be answered in about 120 to 150 words. ये भी आपको बिल्कुल सेम उसी तरीके से 120 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा. और इसमें भी आपको 1 क्वेश्चन करना होगा. 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे चॉइस के लिए एंड 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 1 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 2 मार्क्स फॉर expression. C section is of literature, which consists of 24 marks, in which 5 short type questions out of 6 from prose and poetry from the book Flamingo to be answered in about 30 to 40 words. यानी कि आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. 6 क्वेश्चंस में से आपको 5 करने होंगे फ्लैमिंगो में से, प्रोज एंड पोइट्री दोनों को मिला के, और ये आपको आंसर करने होंगे अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में. क्वेश्चंस शुड बी एलिसिट इन्फरेंशियल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग. ये ध्यान रखना है आपको. ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, 5 into 2 यानी 10 मार्क्स के, ईच कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क. नेक्स्ट में आपके अगेन 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 फ्रॉम प्रोज, यानी कि विस्टार्स में से इस बार आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने होंगे, विच टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स, और जो कि आपके 4 मार्क्स के रहेंगे. यानी कि 2 क्वेश्चन 2 into 2 4 मार्क्स के रहेंगे. ये भी आपको शॉर्ट में लिखना होगा. नेक्स्ट, फ्लैमिंगो में से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज और पोइट्री फ्रॉम फ्लैमिंगो. ये आपकी फ्लैमिंगो बुक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होगा आउट ऑफ द 2. ये भी इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 120 to 150 वर्ड्स रहेगी, और ये बेस्ड होंगे these 2 essays on global comprehension and extrapolation beyond the text. Questions to provide evaluative and analytical responses using incidents, events, themes as reference points. और आपको 2 क्वेश्चन में से एक करना होगा एंड दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स. सेम एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका विस्टार्स में से भी आएगा. 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर्स फ्रॉम विस्टार्स. ये भी आपको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना होगा, और 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, और दिस विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स. यानी कि फ्लैमिंगो और विस्टार्स में से 5 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा. बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे. सो गाइज, आई होप कि आपको ये सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. और फिर भी अगर आपको सिलेबस को लेके या अपनी इंग्लिश टेक्स्ट को लेके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आप मुझसे कुछ बात पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं आपको, अगर वो क्लियर करने हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं या आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स. आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय.